Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Ayushi, and she is a life coach. And she's using holistic approach, especially like meditation for inner child healing, pattern breaking, and removing blockages. And she helps women with pregnancy and parenting and so much. So if you are struggling with inner child bound or parenting, then definitely this episode is going to be fit for you. Make sure to watch it till the end. And Ayushi, welcome to the episode. I'm super duper excited to have you, and so it is my pleasure. So thank you so much. I hope you are doing great. Thank you so much, Mohit. Thank you so much for inviting me here. I'm looking forward to the very insightful session ahead. Yeah, that's what I'm looking for forward also. So Ayushi, this is my first question. You already had a super successful business, isn't it? Yes. So what really happened in your life? Like what made you or what inspired you to be a healer and life coach? Okay. So this is the question I have been answering dozens of times while switching. जब Yes. मैंने लाइफ कोचिंग के बारे में सोचा ना उससे पहले कि मेरी लाइफ वाज यू कैन नेम इट परफेक्ट वाज द वर्ड so life on paper was really perfect, managing director of a group of companies, a successful career, successful family, and I tell you my kid is a divine child. So उस तरह से I was holistically I was very happy on paper, but inside you know inside I was crumbling. inside ऐसा लग रहा था कुछ टूट रहा है. एंड इतना हेवी लेवल का इमोशनल एग्जॉशन था दैट शायद अभी भी मैं वर्ड्स में उस इमोशनल एग्जॉशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. एंड वाइल आई रियलाइज्ड कि जब मैं इंडस्ट्रियल केमिकल रिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए काफी एक्सपर्ट हूँ, बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू मैनेज माय ओन इंटरनल वेस्ट. तो मेरे जो ट्रॉमास थे, मेरे सप्रेस्ड इमोशंस थे, आई डिडंट नो हाउ टू फीड दैट, राइट. एंड जब मैंने ये जब मुझे जब कॉलिंग आई कि आई शुड डू दिस, दैट टाइम आई अंडरस्टूड द फर्स्ट आई विल हैव टू हील माई सेल्फ. I healed myself, and I have already worked with one of the life coaches like me, जिसने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट माई हीलिंग जर्नी. एंड तब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एजुकेटेड वुमेन लाइक मी, अगर मैं इस पाथ में लॉस्ट हो सकती हूँ, देयर विल बी लाइक thousands ऑफ अदर वुमेन जिनको एक्चुअली एक सारथी की जरूरत होगी, दे विल बी वेटिंग फॉर अ सारथी. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि business is also there. My business is still going on great, and that's when I decided to become a sarthi for the women like me, like I was in that phase. Great. So this is very inspiring that you have turned your pain into purpose. Like first you healed yourself and you find out like it is something that so many people are like they are inner child, like there are so many inner child bounds, they don't work on it at all, and even some people don't even realize it. They need it, isn't it? So you find it like, okay, this is something you need to do because a lot of people need it, and which is very true also. I you see, this is my first question. As you healed your inner child, but so many people don't understand what exactly it is, like what exactly inner child healing is. So can you explain it in detail? What exactly is it? So, in explaining inner child healing, it is just, getting all the things that the little girl in me wants. Okay. Say, for example, think your mind as this laptop, and your inner child is the operating system installed in this laptop. Okay. And when I program this laptop, if I program it with fear, the fear is going to be there in the operating system for the endless time. Till Hmm. the laptop is there, the fear will be there, right? Yeah. Similarly, if I program this laptop and I label any child, then the child will carry that label similarly to the operating system. So talking about myself, when I was a kid, I was labeled lazy. And when my parents said ke ye to alsi hai, and it was so many times that I labeled myself. And then after अगर मुझे कोई काम कहा जाता था, my mind used to say तू तो आलसी, तुझे क्यों करना है ये सब. This was a very small example, and this actually was a very big hurdle in me on in my growth also. सब बहुत सारी बार मुझे मेरा माइंड ही ऐसे बोलता था कि तू तो लेजी है, रहने दे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, because you have already been labeled. इवन आफ्टर बीइंग अ 30-year-old वुमन, ये छोटी छोटी चीजों पे ओवर रिएक्शन आता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ लेबल्स. Yeah. और
this is not because of the adult you have become. This is actually because of the child that is there inside you. It is still there. So, उस चाइल्ड को जो जो चीजें चाहिए थी, वो लव, वो अफेक्शन, वो उस टाइम पे अगर नहीं मिला होता है, तो वो सारी चीजें थर्टीज में आने के बाद में ट्रॉमाज में क्रिएट हो जाती है. नॉट इवन थर्टीज, लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो Yeah. उस हिसाब से वो चीजें होती है. सो व्हेन अगर उस टाइम पे मुझे कोई लेबल किया होगा या उस टाइम पे मुझे बहुत डांट पड़ी होगी, तो आई स्टिल बी अफ्रेड कि मुझे डांट पड़ सकती है, और लाइक फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, है ना. सो इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग इज सिंपली गोइंग बैक टू दैट लिटिल गर्ल दैट आई हैड, giving her the safety, giving her the love that she didn't had then. So updating the software of the operating system from fear to love and security. That's what inner child healing is for me. Okay. So as you just said that कि बचपन में पेरेंट्स टीचर्स होते हैं जो हमको लेवल दे देते हैं, लाइक दिस पर्सन इज लेजी, और देयर सो मेनी थिंग्स जो पेरेंट्स को, टीचर्स को, या फिर घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको नहीं बोलनी चाहिए, बट स्टिल दे से इट, एंड वो उस बच्चे की या बच्चे की आइडेंटिटी बन जाती है, एंड दैट आइडेंटिटी दैट पर्सन कैरीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट डजंट हैव just hamper his or her professional life but personal life also, isn't it? So what are we those? cannot blame we cannot blame them. जिन्होंने लेबल किया है, we cannot blame them. Why? Because वो तो खुद के एक्सपीरियंसेस के हाँ हिसाब जी, से बता रहे हैं उनको भी ना. नहीं पता है, उनको भी नहीं बिकॉज पता है कि दे मेरे आर नॉट पेरेंट्स को अगर अवेयर. पता होता दैट वो लेबल, द लेजी लेबल विल कम इनटू द ग्रुप ऑफ माइंड, वो कभी नहीं बोलते. Yeah. So this is what my question is. So what are those labels, you know, जो पेरेंट्स को, टीचर्स को अवॉइड करने चाहिए, यू नो, हम्म. जिससे कि फ्यूचर में इनर चाइल्ड बाउंड्स ना डेवलप हो, पर्सन जो है इमोशनली फील सिक्योर करे व्हेन दैट पर्सन ग्रोज अप. हम्म. So rather than telling you what labels can be ignored, मैं आपको या. वो labels बताती हूँ जो एक्चुअली देने चाहिए आपको बच्चे को. ओके. इट इज मच राइट. मच बेटर. मच बेटर बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर लिस्ट ऑफ, है या ना. उतना राइट. अगर एम्फेसिस कोई भी करेगा, इट विल बी इजियर फॉर देम. सो या. यू व्हाट आई डू विथ माय किड, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू. I regularly tell him in the night, we have a affirmation or gratitude session regularly. रात को सोने से पहले I train his subconscious mind in this way. मैं उसको बोलती हूँ that baby you are kind, you're strong, you're very passionate, and you're very positive, you're very successful, you're very strong, and what all उस दिन के हिसाब से मुझे लगता है अगर कि मुझे उसे लेबल्स देने चाहिए. राइट. यू नो व्हाट, मैं जब उसको देखती हूँ ना, व्हेन आई सी माय सन ऑपरेटिंग, मुझे इतना प्राउड फील होता है. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट व्हाट आई एम ग्रोइंग इज एक्चुअली व्हाट एवरीवन शुड डू. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज लाइक, सब लोग बोलते हैं स्टबर्न वर्ड, बट आई से वेरी ओरिएंटेड, वेरी अलाइंड विथ व्हाट ही नीड्स. ना, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो. इफ यू कम टू माई किड, आप उसको बोलोगे चॉकलेट ले ले मेरे साथ चल, ही वोंट. दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैन बी डेवलप्ड. मेरा बेटा 4 साल का है, ही इज सो स्मॉल, राइट. इतने छोटे बच्चे को आप चॉकलेट इन्फ्लुएंस करके किसी को भी ले जा सकते हो, मेरे वाले को नहीं ले जा सकते हो. दैट इज हाउ माइंडसेट वर्क. दैट इज हाउ द लेबल्स हैव द पावर. या, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डू. मेरे बड़े भाई का बच्चा है, and he is also 4 years old. So whenever he is going with me like in park or somewhere, तो उसको ना बात करने की बहुत ज्यादा आदत है. And this is what I repeat to him, like, his name is Rihan. So I say like, Rihan, say this: I am strong. Rihan, say this, like, making money is super easy, it is not tough at all. So दैट इज because वेरी our इंपॉर्टेंट. parents, this is what we have learned from our parent, like, okay, making money is hard, पेड़ पे नहीं लगता है, पेड़ पे नहीं and लगता है. blah blah blah, something like this. So I'm just telling him the opposite, completely opposite. You are strong, you are brave, you are smart, you know you are very like, there are so many things. अभी तो मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे मैं उससे बात करता रहता हूँ, एंड ही रिपीट्स इट एंड ही एंजॉय इट. एंड व्हेन आई से ऑल द थिंग्स, अभी उसको वो इमोशन समझ नहीं आता, आई डोंट नो बट व्हाई ही फील्स हैप्पी. वो अंदर से खुद ही बहुत ज्यादा खुश, उसको लगता है कि शायद आई एम प्रेजिंग हिम. So this is very nice experience as well as for me, and this is what I will do when I will have kids also. Yeah. एब्सोल्युटली. Yeah. So you see, uh, they are like, as you help females, right? You help women, especially, isn't it? यस.
Yeah. So, what are common pattern or emotional blockages which you have noticed in women जो उनको प्रेगनेंसी के टाइम या पेरेंटिंग के टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते हैं या फिर उनकी ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट करते हैं? ओके, सो विमेन के लिए ना प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम, ये तीन फेजेस जो होते हैं वो सबसे, आई थिंक सबसे लो तो नहीं बोल सकते बट बहुत ज्यादा चेंजिंग वाले फेजेस हैं। इन चेंजेस चेंजेस इन ऑल टर्म्स, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उन सब के चेंजेस हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। एंड विमेन को एक बहुत, मैं उसको बीमारी बोलती हूँ, दैट इज अ सुपर वुमेन सिंड्रोम। ये आई थिंक सारी लेडीज को बीमारी होगी, आपकी मम्मा को भी होगी ये बीमारी, सबको होती है। द बिलीव के वी मस्ट डू इट ऑल, मुझे ही सारी चीजें करनी है, परफेक्टली करनी है और अकेले करनी है, राइट। आई सी लॉट ऑफ वुमेन जो डीप गिल्ट में चली जाती है अगर थोड़ी देर आराम कर लिया तो। क्या आप आपकी मम्मा को इमेजिन कर सकते हो किचन सिंक में बर्तन पड़े और मम्मा सो रही है? नो। पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये तो दिस सुपर वुमेन सिंड्रोम इज, मैं तो उसको बीमारी वर्ड देती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बीमारी फॉर ऑल दी वुमेन। अनदर वन इज जनरेशनल साइलेंस एक्चुअली, है ना। जो भी मदर्स होती है ना, वो दे आर कैरिंग सो मच इमोशनल बैगेज ऑफ देयर ओन मदर। अगर मैं ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं, मेरी मम्मा ने कैसे किया था, आई टेक फ्रॉम हर एंड आई ऑपरेट दैट वे। वो इमोशनल बैगेज की जरूरत नहीं है। वो इमोशनल बैगेज उनका जो था, इट केम फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। मेरा जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो आप जनरेशनल साइलेंस, वो इमोशनल बैगेज आपके साथ लेके आते हो, यू आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग दैट टू योर किड। अभी तो बच्चा जन्म भी नहीं लिया है उसने, एंड उससे पहले ही ये सारी चीजें आ जाती है। एंड यू नो सब लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में माँ दो लोगों का खा रही है, बट दो लोगों का सोच भी रही है, दो लोगों का फील भी कर रही है। लेकिन स्ट्रेस जो ले रही है वो जनरेशन्स का ले रही है, क्योंकि माँ से बेबी को आते 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 and वो बच्चा भी जन्म भी नहीं लिया है, उससे पहले आपने उसको जनरेशनल ट्रॉमास देना स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो दीज टू आर वेरी कॉमन पैटर्न्स मेरे हिसाब से इन दी ओके। women. या राइट। वो एक कहानी याद आ जाती है ना, महाभारत अभिमन्यु वाली। ही वॉज लिसनिंग एवरीथिंग एंड उसने पेट Yes, के अंदर ही सारी चीजें सीख ली थी, yes. isn't it? So how does it affect a kid life even before the birth? हाँ, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ये चीज का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देती है। हमने तो बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है, आपने अभी अभिमन्यु की बात करी, है ना। Yeah. उस टाइम पे अगर वो अभिमन्यु पेट में रह के ये सारी चीजें सीख सकता है, चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, हमको पता है भक्त प्रहलाद का, हाउ द Yeah. मदर वाज इनटू द नारायण भक्ति प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड वी नो व्हाट द आउटकम इज, राइट। तो रिसेंटली बायोलॉजिकली भी, मूवी भी आई थी उनकी, हाँ, एनिमेशन अभी की। रिसेंटली नरसिम्हा मूवी आई आई सॉ इट थी। इन थिएटर। Yeah. इट वाज वेरी It's a नाइस। very beautiful movie. I loved it. I Yeah, it loved was. the animations and everything उसमें। Yeah, it was. तो कमिंग टू माय आंसर, स्पिरिचुअली भी, साइंस के हिसाब से भी ये चीजें बहुत प्रीडोमिनेंट है, सबको ही पता है। बायोलॉजिकली व्हेन अ मदर इज स्ट्रेस्ड ना, तो वो बॉडी, अपने बॉडी जो होती है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन, एंड हॉर्मोन्स जो भी मम्मा की बॉडी प्रोड्यूस करती है थ्रू प्लेसेंटा बेबी में जाता ही जाता है। नाउ कॉर्टिसोल, आई टेल यू, जो ह्यूमन बॉडी जब बनी थी वो केव्स में रहने के हिसाब से बनी थी। वी यूज टू लिव इन केव्स। तो उस टाइम पे एक ही डर था, शेर खा जाएगा हमको आके, है ना। एक ही डर था उस टाइम पे। तो अब जब जिस टाइम पे भी अगर ह्यूमन को सामने शेर दिखाई देगा, व्हाट हैपेंस इज बॉडी गोस इनटू फाइट और फ्लाइट मोड। और फाइट और फ्लाइट मोड में जाने से या तो तुम लड़ो या तो तुम वहां से भाग जाओ। उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, राइट। बट वो जब केव्स में रहते थे वो तब, सिर्फ तब होता था जब शेर सामने आता था। अभी उस टाइम की मेमोरी ह्यूमन बॉडी के अंदर रह गई है। एंड नाउ द कॉर्टिसोल इज सारी चीजें आसपास की, कोई ऑफिस की डेडलाइंस होंगी या किसी ने कुछ बोल दिया, ये सारी चीजों में कॉर्टिसोल डेवलप हो जाता है। जितनी भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग चीजें आपको आज के डेट में पता है वो सारी कॉर्टिसोल को सपोर्ट करती है। वो कॉर्टिसोल थ्रू प्लेसेंटा चला गया बेबी के अंदर। ना स्पिरिचुअली तो सबको पता है कि वूम जो है, जब बेबी एक टमी के अंदर है, दैट इज द फर्स्ट क्लासरूम ऑफ द बेबी। अगर मम्मा ही फाइट और फ्लाइट मोड में है तो बेबी का नर्वस सिस्टम तो अभी से यही सीख रहा है। अभी से उसके दिमाग में तो ये सेट हो गया कि द वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस।
कि वहां पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहना पड़ेगा। तो एक एक प्रेग्नेंट लेडी का जॉय जो होता है ना, सब बोलते खुश रखो उसको, जो चाहिए वो दो, ये सब वो सिर्फ एक लग्जरी एक्चुअली नहीं है कि तू तो प्रेग्नेंट है तेरे तो मजे, वैसा नहीं होता। दैट्स नॉट अ लग्जरी एक्चुअली, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द कमिंग चाइल्ड की मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन है वो पूरा, नॉट ओनली फॉर मदर बट ऑल्सो फॉर द चाइल्ड। पूरा मेंटल हेल्थ बच्चे का कैसा रहेगा वो उस फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। इफ योर मदर हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन हर प्रेगनेंसी, वो आपको भी इफेक्ट करेगा। And the fact is that when a female is pregnant, एवरीबडी से हर कोई घर में ही बात करेगा, अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ। बस वो खिलाने तक ही रहेगा। यू नो उसके बाद उनकी उस लेडी की मेंटल पीस क्या है, इमोशनली कोई बैगेज तो नहीं है, नो बडी केयर्स अबाउट इट। ओके, एंड यू हैव टेकन दिस initiative to help females. This is very nice and amazing, work that you are doing. So, because people are not talking about it at all, we need to talk about it, isn't it? This is much डेफिनेटली, needed for a child, mental health, डेफिनेटली इट because इज वेरी लोग इंपॉर्टेंट। या फिजिकल हेल्थ को ही लोग प्रियोरिटी देते हैं, स्पेशली बच्चे की। मेंटल हेल्थ के बारे में तो, बच्चे के बारे में तो सोचते हैं एक बार को, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब सोचते हैं, यू नो सब सोचते ना। हैं ये। हाँ, तभी सोचते हैं। अभी तो ऐसा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, अब से पहले तो वो भी नहीं थी। हाँ, अभी अभी तो एक्चुअली बहुत लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी करते हैं। एंड हम्म। मदर्स के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मेरी मम्मा को पेट दुख या शोल्डर दुख, कुछ भी दुख रहा है, अगर कुछ भी चीज दुख रही है, तो वो एक्चुअली वो पेन नहीं होता है। अगर शी इज नॉट फीलिंग मेंटली वेल 3 दिन तक, अगर उनको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट वो उस पर ध्यान नहीं देगी, तो वो सारा स्ट्रेस, वो सारे इमोशन कोई बॉडी के कोई पार्ट में स्टोर होते हैं। हम्म। एंड दिस इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक एक्चुअली, कि अगर आप आपके ब्रेन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो उस टाइम, इट कन्वर्ट्स इनटू साइकोसोमैटिक, और फिर कंधा दुखना, नी दुखना। ब्रेस्ट कैंसर इज अ साइकोसोमैटिक डिसीज। हम्म। देन विमेन जिनको नी पेन होता है, दैट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक। नी पेन इसलिए होता है कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे अगर इच्छाएं मम्मा अपनी मारने लग जाती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में 5 लोग हैं, आइसक्रीम हमारे पास 4 ही है, तो पहले से ही पता होता है कि मम्मा नहीं खाएगी, बिल्कुल। राइट। वो छोटी सी इच्छा होती है, अपन को ऐसा लगता है कि मम्मा को प्री प्री वो हो जाता है, प्री अज्यूम हो जाता है कि मम्मा नहीं खाएगी, वैसा उनकी इच्छा तो पूछ लो एक बार। बिल्कुल सही बात। छोटी छोटी इच्छाएं मार के वो अपनी नी डैमेज कर रही हैं, अपनी बॉडी डैमेज कर रही हैं, एंड हम उनको भी नहीं पता होता है ये सारी चीजें, कि ये सारा जो दिमाग से, अगर आप दिमाग को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो किसी ना किसी तरह से खुद को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए इट विल ट्रांसफर इनटू सम बॉडी पार्ट। या बिल्कुल, एज यू जस्ट said ना, उनको भी नहीं पता होता है, लाइक देर नहीं इज पता। अवेयरनेस इज नॉट देयर। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो कि व्हाट आर दो सिम्टम्स किसी भी फीमेल को, इवन मेल को भी, दे शुड नोटिस? हम्म। क्योंकि काफी सारे लोग तो जी रहे हैं जिंदगी को, दे आर नॉट इवन, दे डोंट इवन नो कि लाइक दे आर बाउंडेड, their inner child is bounded, isn't it? So यस। what are those symptoms जो किसी भी लेडी या मेल को या फीमेल को देखनी चाहिए बॉडी में, या डेली एक्टिविटी के अंदर, या पर्सनली या प्रोफेशनली, so that they feel okay, now they need healing? ओके, सो आई टेल मिलेनियल्स जितने भी है, दे जी। डेफिनेटली नीड हीलिंग। ओके। डेफिनेटली 100% ऑफ द मिलेनियल्स नीड हीलिंग। मैं इतना काम खुद पे करने के बावजूद भी 4:30 आई वेक अप, आई हैव माय ओन कोच, हर नेम इज प्रीति यादव। मैं उनके साथ में मेडिटेशन करती हूँ सुबह में, राइट। इतना हील करने के बावजूद, इतना स्पिरिचुअली हाई आने के बावजूद भी आई डू दैट। सो मिलेनियल्स को तो 100% जरूरत है। उसके अलावा अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लाइक अगर आप हैव टू वर्ड यूज कर रहे हो रादर देन चूज टू, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर आपकी लाइफ में हैव टू है, यू नीड हीलिंग। क्योंकि कोई भी चीज आप जो भी कर रहे हो, एक भी चीज हैव टू नहीं होती, एक भी चीज आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, एवरीथिंग यू चूज। एंड इफ यू टेल मी कि आयुषी सांस तो लेना ही पड़ेगा, नहीं, सांस ऑल्सो यू चूज। लोग तो सुसाइड कर ही रहे हैं ना। यू बिल्कुल। चूज टू ब्रीथ, यू चूज टू लिव, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग योर ब्रेथ। तो अगर आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है,
एंड अगर आप ठीक है, आप अगर आपका माइंड रीड नहीं भी कर पा रहे हो, देन इफ यू हैव माइग्रेन, इफ यू हैव सम बॉडी पार्ट जहाँ पे एवरी टाइम पेन रहता है, यू नो मेल्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे दिस बैक, Yeah. यहाँ पे पेन होता है, एंड दैट कम्स पूरा ऐसे, वो बहुत मेल्स को मैंने देखा है कि दे हैव पेन हियर, दैट इज ड्यू टू द बर्डन दे आर कैरिंग। और मेल्स तो पता भी नहीं कर पाते हैं। द फ्यू क्लाइंट्स आई एम वर्किंग विद, इतनी छोटी छोटी बातें हैं एक्चुअली उनकी लाइफ में, एंड उनको आइडिया ही नहीं है कि ओ माय गॉड इस रीजन की वजह से मैं ऐसे ऑपरेट कर रहा था। एक छोटा सा शिफ्ट, बहुत छोटा सा शिफ्ट, एंड miracles have started to happen। ये ना, मैं ये सारी चीजों को, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इन सब चीजों को तो मैं मैजिक ही बोलती हूँ, प्योर मैजिक, क्योंकि उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। एंड Hmm. आप ये सारे चीजें करके, मेडिटेशन करके आप आपका माइग्रेन हील कर सकते हो, व्हाट नॉट, लाइक यू कैन हील योरसेल्फ। मैं, मुझे सालों हो गए दवाइयां लिए, जीरो मेडिटेशन, जीरो मेडिकेशन, Only meditation. ओनली मेडिटेशन। Nice. Okay. There are so many working professionals also, those who feel that they have a lot of potential, but they always find themselves कि जैसे किसी ने उनके ऊपर जाल फेंक रखा है, दे आर ट्राइंग टू लाइक गेट आउट ऑफ इट, ऐसे हाथ में, मतलब ऐसे रियल में नहीं फेंकते, बट दे फील इट, कैसे हाथ पैर फेंक रहे हैं, और उनको नहीं समझ में आता कि किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो क्या इनर चाइल्ड बाउंड भी इसके पीछे का रीजन हो सकता है? Like they are यस, not able to unlock their true potential. यस, यस, दे आर नॉट एबल टू। मोहित, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आप आंख बंद करो और भगवान से ऐसे बोलो कि मुझे 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप बोलोगे? No, और अगर आप बाई चांस बोल भी लो, तो आपका दिमाग आपसे क्या बोल रहा है? possible नहीं है। दिस इज वॉट इज पोटेंशियल। आपका जो पोटेंशियल है वो आपका माइंड डिसाइड करता है। अगर मेरा पोटेंशियल है कि मैं 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए कर सकती हूँ, आई विल क्लोज माई आईज, आई विल टेल टू यूनिवर्स, और मेरे पास वो आएंगे ही आएंगे। आई हैव जीरो डाउट ऑन दैट, जीरो डाउट। मैंने मैनिफेस्ट कर करके, मेरे पैटर्न्स ब्लॉक कर करके इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें बचा ली है ना अब, दैट शायद मैं पहले ले भी सकती थी, बट मैं ले नहीं पा रही थी, और वॉट एवर द रीजन माइट बी। बट ये पोटेंशियल आपका जो है ना, दैट इज टोटली माइंड बाउंड। आपकी रीवायरिंग उस हिसाब से हुई, जैसे हमने अभी बात करी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। उगते हैं भाई, मेरे घर पे मनी प्लांट है, जैसे जैसे मनी प्लांट बड़ा होगा मेरे पास पैसे आते रहेंगे। व्हाई डोंट वी रीवायर दैट? मेरा बेटा Exactly. बोलता है मेरे अकाउंट में बहुत पैसे, जिसको किसी को भी कुछ भी चाहिए मुझे बोलना, मैं दिलाऊंगा। वो अभी भी बोलता Now, है, ही सेज दैट। हमारी रीवायरिंग वैसे हुई हुई है कि पैसे कमाना, हार्ड वर्क करो, परिश्रम करो, वो सुन सुन के हम बड़े हुए हैं ना। तो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो पैसा आ भी गया तो रिसीविंग एनर्जी ही नहीं है। वो पोटेंशियल जो हमारा है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस से पूरा ये हो जाता है। लाइक वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही जस्ट हैड टू बी काइंड टू वन ऑफ द पर्सन इन द ऑफिस। द डे ही स्टार्टेड बीइंग काइंड टू द अदर पर्सन, लाइफ चेंज हो गई उसकी। इतने छोटे चेंजेस होते हैं, इतने छोटे। वाइब इंसान पहचानना जब सीख जाता है ना, तब वो अपने आप से। और एंड यू नो व्हाट, मैं सिर्फ ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ इन माय सारथी के अंदर, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको भी मैं हेल्प कर रही हूँ टू कम आउट ऑफ देयर ट्रॉमास, देयर पैटर्न्स। मैं सिर्फ ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ जिनको बहुत छोटे छोटे शिफ्ट चाहिए होते हैं। वो मतलब मुझे तलवार की अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, सुई सारा काम कर रही है मेरा। and एंड these small shifts like वेरी स्मॉल create huge शिफ्ट। impact. Yes, and whether it is career, whether it is physical, whether it is financial, सारी चीजों में वो सारी चीजें वर्क करती है। बिकॉज सारी चीजें ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, करियर विल नॉट बी, राइट? बिल्कुल, इंटरलिंक्ड ही है वो सारी चीजें। इतना बिल्कुल। छोटे छोटे चेंजेस सारी चीजों में इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं ना। प्योर मैजिक, इट इज प्योर मैजिक। एंड आई सजेस्ट आपके जितने भी व्यूअर्स है, प्लीज यू वॉच द मूवी द सीक्रेट। अगर आप, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, इफ नॉट प्लीज देखिए उसको, एंड इट इज रियल। मैंने जनवरी में मैंने मेरा विजन बोर्ड बनाया, उसमें मैंने न्यू कार एंड अ डायमंड रिंग लिखी थी। एंड फेब्रुवरी 15th 16th को मैंने मेरी डायमंड रिंग परचेज करी, दिस इज अ 5 कैरेट डायमंड, ठीक है। एंड द कार केम इन मार्च। Amazing. तो प्योर मैजिक, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है उसमें।
एंड समटाइम पीपल टेक इट इन दिस वे ऑल्सो, लाइक कि काफी सारे लोग हैं जिनको, लाइक आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, आई डोंट नो लाइक इफ इट इज मैनिफेस्ट ही इज मैनिफेस्टिंग इट, और ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी कूल कि मुझे ये करना है, अपने वॉलपेपर पर गाड़ी, लाइक जो महंगी महंगी फरारी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इन सब की पिक्चर्स लगाता रहता है, एंड ही डू नथिंग। सो वैसे मैं, नहीं होगा। वैसे लाइक नहीं होगा। पिक्चर्स ऑब्वियसली वर्क, पिक्चर्स एवरी टाइम आपको याद दिलाती है, बट देन अगर वो आपको याद दिला, इफ यू नो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो दैट आई एम ग्रोइंग, तो आप ग्रोइंग में ही रह जाओगे। हम्म। यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है कि मैं ग्रोइंग करके मैं ग्रो हो गई हूं, वहां तक मुझे पहुंचना है। यूनिवर्स को उतना समझ में आता है, तुमने तुमने मिक्सर ग्राइंडर में चीकू डाला, और दूध डाला और मिक्सर ग्राइंडर चालू किया, तुमको चीकू शेक ही मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के चीकू शेक बनाने के से मुझे मैंगो शेक आप दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू बिल्कुल। डू फ्यू थिंग्स फॉर दिस थिंग। और आप अगर अपने माइंड को उस तरह से रिवायर करते हो ना, आपके जो गोल्स हैं वो आपको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है, इन ऑल हम्म। टर्म्स। ये ये गोल्स एक्चुअली स्टार्ट आपके ड्यूरिंग व्हेन यू वर इन योर मदर्स वूम, वो तब से चालू होती है ये सारी चीजें। यस, ट्रू। So Ayushi, as you also trained in, Garbh Shankar, right? So can you just explain it? How does it help, in child development? हम्म। गर्भ संस्कार ना, गर्भ संस्कार इट इज कोई रिचुअल नहीं है। Okay. क्योंकि गर्भ संस्कार एक्चुअली इट इज अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि माँ अपने बेबी से वूम में बात कर सके, अपने बेबी को वूम में वो सारी चीजें सिखा सके जो एक्चुअली उस टाइम पे उसे सीखनी चाहिए। नाउ दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन थ्रू म्यूजिक, थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, थ्रू स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। जैसे जो वाइब्रेशंस हमें हमारे मंत्रों से मिलते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। सो दैट इज हाउ गर्भ संस्कार वर्क्स। एंड वो गर्भ संस्कार के टाइम पे इफ यू डू इट वेरी इफेक्टिवली, तो एंड ईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट, वो दोनों डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो जाती है सारी चीजें। सो बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, तो जैसे हम घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट हायर करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम वे गर्भ संस्कार इज द आर्किटेक्ट फॉर योर बेबीज फर्स्ट ब्रेथ। कि जब बच्चा बाहर आए उससे पहले का जो ट्रेनिंग करना है ना, बच्चा जब वूम में होता है, बच्चे के मोर देन 2 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, 2 लाख न्यूरल पाथवेज होते हैं। एंड जब बच्चा 2-3 साल का होता है ना, वो धीरे धीरे पाथवेज सारे कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में वो बच्चा सिर्फ उतने पाथवेज के साथ रह जाता है जितने हमने डेवलप करे हो, जितने उस बेबी ने डेवलप करे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को, हमारे बेबीज को उड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? जस्ट एग्जाम्पल दे रही, ऑब्वियसली ह्यूमन किड्स कांट फ्लाई, बट अगर उसका एक न्यूरल पाथवे है जिसमें बच्चा उड़ सकता है, बट देन वो हमने डेवलप ही नहीं किया, हमने तो क्रॉलिंग करना सिखाया, देन बच्चा क्रॉलिंग करना सीखेगा। देन दैट उड़ने वाला न्यूरल पाथवे इज ऑफ नो यूज। नहीं होता है इंसानों में उड़ने वाला न्यूरल पाथवे, जस्ट एन एग्जाम्पल इट इज। सो गर्भ संस्कार करके आप वो सारे न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट कर सकते हो, एंड बच्चे को खुद डिसाइड करने का चांस दे सकते हो कि व्हाट ऑल यू वांट, व्हाट ऑल यू नीड इन योर लाइफ। तो मैंने भी गर्भ संस्कार, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे आई ज्वाइंट, आई वाज नॉट वेरी रिलीजियस उस टाइम पे, बट मैंने भी एक गर्भ संस्कार क्लासेस ज्वाइन किए थे, एंड शी टोल्ड मी कि आप जो बात करोगे अपने बेटे से दैट विल हैपन, अपने बेबी से दैट विल हैपन विथ। तो मैंने उसको 3 ही चीजें बोली थी व्हाइल ही वाज इन माय वूम, कि यू विल हैव टू कम बाय नेचुरल बर्थ। आई डू नॉट use the word normal delivery, I use the words natural birth or belly birth, because I want to normalize the C-section also, because that's also very extremely painful. So the baby has to come by natural birth. Then the second thing was that baby will be breastfed only, no formula for the baby. And third was he'll have to complete the full term. तो मेरा बेटा 9 महीने कंप्लीट करके आया है, ही वॉज कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी, एंड यस नेचुरल बर्थ हुआ था मेरा। सो वो सारी चीजें वर्क करती है, इररिस्पेक्टिव, मतलब आपको ना लॉजिक नहीं लगानी उस सब चीज में। अगर आपने लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया, आप अगर बोल रहे हो कि यू हैव टू कम बाय नेचुरल बर्थ, बेबी को बोल रहे हो, फिर सोच रहे हो अगर डॉक्टर ने बोला तो सी सेक्शन भी हो जाएगा, इट वोंट वर्क। यू हैव टू ट्रस्ट। तो गर्भ संस्कार इतने बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट।
Yeah, got it. Got it. So I say as you have helped a lot of people to heal them, right? So can you just share one of your client case study without revealing their identity, obviously, you know, which sounds like जब आप उस केस स्टडी के बारे में सोचते हैं, इंसान के बारे में सोचते हैं, it feels like it was very magical. ओके, आई कैन रिवील द आइडेंटिटी, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स माय ओन If it जेठानी, is okay, then it obviously is you can. my own जेठानी. Okay, and Okay. my co-sister, coming back to my story where I actually took burden on me when she was pregnant, when she had her son, and उसके बाद में ना उनमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, like the way she operates, जो इतनी चुलबुली सी प्यारी सी एकदम, मतलब she was very nutcut kind of girl उस टाइम पे, women, and suddenly very angry and you know हर चीज में react करना rather than respond करना, वो वहां पहुंच गई थी, and it was very painful for me. एंड देन देवर मेनी एक्सपेक्टेशन सेट, जो वो उन पे खरी नहीं उतर पा रही थी. दैट टाइम आई टुक दोज एक्सपेक्टेशंस ऑन माई सेल्फ, कि वो जो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पा रही हैं, आई नीड टू डू दैट. मेरे को वो सारी चीजें करनी है जो वो नहीं कर पा रही थी. दैट्स व्हेन आई टुक द मेंटल लोड, यू नो मेंटल बर्डन ऑन माई सेल्फ. मेरी जब हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई उस टाइम पे मुझे समझ आया व्हाट शी इज डीलिंग विथ. मेरी हीलिंग जर्नी चालू हुई जब मेरा बेटा अबाउट 1.5 years अप्रॉक्स था, तब से मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई. हर हीलिंग जर्नी स्टार्टेड व्हेन हर सन वाज 5. 5 साल का था वो उस टाइम पे व्हेन हर हीलिंग जर्नी स्टार्टेड. मैंने खुद को हील किया, आई अंडरस्टूड हर पैटर्न्स, फिर मैंने उनके साथ में ये सारी चीजें करी. एंड यू नो, ये मुझे एक्चुअली आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट शी हैड बीन इन पेन फॉर 5 years. एंड फिजिकली तो वो जितना कर सकती थी, शी हैड ट्राइड एवरीथिंग. बट ये सारी यू नो सेशंस हमने जब किए, हमने सारे मेटाफिजिकल कॉजेस पे वर्क किया, लाइक साइकोलॉजिकल भी पूरा देखा हमने, हीलिंग भी पूरा देखा. इतना क्रोनिक बैक पेन था उनको, एंड अगेन साइकोसोमैटिक. व्हाई? बिकॉज शी वाज कैरिंग हेवी बर्डन एंड शी हैड लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. आई विल से शी हैड वेरी गुड पीपल अराउंड बट लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. उसकी वजह से बैक पेन होता है विमेन को, सी सेक्शन की वजह से नहीं होता. अगर आपको कोई बोलता है सी सेक्शन हुआ है, बैक पेन होगा ही होगा, आप 5 बार उसको बोलो तो वो खुद ही बैक पेन ले लेगी, राइट? बट सी सेक्शन के बाद, जो सी सेक्शन नहीं, एक्चुअली डिलीवरी के बाद जो भी बैक पेन होता है, दैट इज प्योरली एंड प्योरली ड्यू टू हेवी बर्डन ऑन सेल्फ एंड दिस थिंग, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. इन दोनों चीजों की वजह से होता है. हम लोगों ने ना बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस थे उनके, जो भर भर के रखे थे उन्होंने इन हर बैक, उसको हम लोगों ने रिलीज किया वन बाय वन, धीरे धीरे गाइडेड विजुअलाइजेशंस किए. एंड जितना वेट वो कैरी कर रही थी ना, धीरे 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 वो कम होता गया. इन वन मेडिटेशन, इन द रूट चक्रा मेडिटेशन व्हेन वी डिड, वो सडनली गायब हुआ. एंड शी टोल्ड मी दिस लेटर ऑन, कि जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आई हैड अ सिवियर क्रॉनिक बैक पेन. उस टाइम पे वो फील कर रही थी वो बैक पेन को. एंड जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ, इट वैनिश्ड, और उसके बाद वो आया ही नहीं वापस. दिस मेडिटेशन वी डिड इन जनवरी, दिस जनवरी इटसेल्फ, और वो अभी तक वापस नहीं आया, जो 5 साल से रेगुलर था, Very वो वापस नहीं आया. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कि अगर अगर आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिजिकली जो बॉडी आपको सिग्नल करती है पेन, वो सिग्नल करना बंद हो जाती है, बिकॉज ब्लॉकेजेस से सारे क्लियर हो गए. सो body speaks what your mind cannot. yeah. This thing gives me a lot of proud for myself, as well as acknowledgement, as well as the power के हाँ भाई उनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. That's my feeling for her. This is very incredible also. You know, Incredible. The going, bond, हमारा जो bond था ना, वो उस टाइम पे the bond also disturbed. And I say, we say it very openly. She is also very open with all these things. She also accepts it very nicely. उस टाइम पे जो बॉन्ड हमारा, थोड़ा सा हमारा वो बॉन्ड नहीं है देरानी जेठानी लड़ाई वाला. नेवर इट हैड बीन. हम लोग हमेशा वी हैव बीन सिस्टर्स और फ्रेंड्स, और जो भी आपको द गुड वर्ड्स ओनली एवरी टाइम. बट ये पोस्टमार्टम ने ना इतना पूरा बॉन्ड खराब कर दिया था. एंड व्हेन वी हील्ड आवरसेल्व्स, अभी आज की डेट में, पहले तो हम गॉसिप्स की वजह से दोस्त थे, एंड अब हम लोग वी टॉक ओनली ग्रोथ, ओनली एंड ओनली ग्रोथ. लाइक अभी भी रेगुलरली हमारा 1 घंटे का कॉल होता है, बट वी टॉक ओनली ग्रोथ.
Very nice. And I see if someone is struggling, you know, uh, like is facing some emotional problems, he's going through some, inner child wounds, stress, anxiety, or any emotional problem. So, can you share one or two or like three, whatever you feel is fit or right, strategies or tips or meditation practices which anybody can do and get the instant relief? ओके, इंस्टेंट रिलीफ का द थिंग दैट आई एम यूजिंग, मैं सबको वो चीज बताती हूँ, आई यूज द पीस बबल टेक्निक। अभी Okay. आपके ये पॉडकास्ट करे तो सबको पता चल जाएगा, जब भी ये कान को जा रही है शी इज एक्टिवेटिंग हर पीस बबल, बट दैट इज व्हाट आई डू। आई वो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी उसका स्विच रख सकते हो, यू डिसाइड आपको ये करना है, ब्लिंक करना है, आईज हेड स्क्रैच करना है, वॉट एवर इज एफिशिएंट फॉर यू, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। मैं अपना कान स्क्रैच करती हूँ, आई डू दिस। एंड Okay. मैं अपना यू नो मेंटली अपना पीस बबल एक्टिवेट करती हूँ। एंड देन आई टेल टू माई सेल्फ, सामने वाला जो बोल रहा है, जो अनवांटेड एडवाइस दे रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि मुझे वो एडवाइस लेनी ही लेनी है। जरूरी नहीं है कि वो मेरी जो बुराई कर रहा है या मुझे जो भी डांट रहा है सामने वाला, जरूरी नहीं मुझे वो लेना है। राइट, आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई टेल दैट टू माई सेल्फ। तो स्क्रैच किया, पीस बबल एक्टिवेट किया, और वो अब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जो सामने वाला बोल रहा है वो। Yeah, बहुत correct. बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीजें लगती है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव। ओनली 1% पीपल इन द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन दिस, Yeah, वर्किंग true, ऑन देमसेल्फ। true, true. And I see if somebody wanna start their healing journey with you, let's suppose. So do you offer any clarity call also, free clarity call or something? Yes, I have a free clarity call. The link is already there in my bio. And if you want, I can share you the link also, so that Yeah, if sure. anyone Yeah, wants yeah. to, we can definitely. In the clarity call, I give them the, the word Sarthi also came to me in the meditation itself, by the way. So I gave them the path. आप कौन से path पे चल के क्या achieve कर सकते हो, the potential also. I tell them that. I can give them that into 1.5 hour max का clarity call होता है, and in that they can discuss their traumas, जो जो उनको लगता है जहाँ जहाँ उनको heal करने की जरूरत है। And then but only those people should get in जो उनको जिनको लगता है कि कोई magic छड़ी नहीं है, like I do not have a छड़ी, I'm not a guru kind of के ऐसे तथास्तु किया और हो जाएगा, it's not। You will have to work on yourself, तो ही Mm. होगा। The people who are actually genuinely wanting growth in their life should definitely go for this. This is magic, but not जादू की छड़ी वाला। Yeah. So IUC your Sarthi is your Insta handle account name, Yes, isn't it? yes, yes. Yeah, Ayushi okay. So dot guys, Sarthi, it is। yeah. So guys, if you're watching it and you want to start your healing journey, get the transformation, then IUC, she is absolutely best in it. You can contact her on her Instagram account, message her, book your free clarity call, and definitely she will guide you. And if you want to check out the link, you can just check out the description of this video if you're watching it on YouTube. Check it out, contact her, and start your healing journey. So IUC, it was an amazing conversation. I totally enjoyed it. It was very insightful. And I'm pretty sure those people who are going to watch it or who have already watched it till here, they they have loved it. Or if they are going to watch it, they will love it definitely. So once again, thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much. Have a great day. Thank you, Mohit. Thank you for having me. Have a great day। Thank you.